Hello everyone, this is Vedanshu here, your teacher at Vigilantes. Today we'll be dealing with the chapter Cells, the Fundamental Unit of Ninth. This is Cbse class 9th ka course, and it can also be followed the same for ICSE also, ICSE 9th I think, ICSE 9th and some parts of ICSE 10th can also be followed over here. So, um, discovery of cells. Who discovered cells and what are cells are being discussed over here. So, discovery of cell was done by Robert Hooke in 1665. He observed these tiny skulls using his self-designed microscope. I have given the picture over here. This is the picture of his microscope, sorry, not telescope, of his microscope. And this is a modern microscope, modern day microscope, and this is a primitive microscope. Yeah. So he observed these tiny cells using his self-designed microscope. And what cells did he use? He used cork cells in order to determine the structure. So he used cork cells. Now, what are cork cells? See, whenever, just a second. Yeah. For example, this we have a tree over here. We have a tree over here, right? So the bark of it, whenever you see a tree, you will be like noticing it that it has this thick covering. Like, for example, if this is a bark, this would be a thick covering over there present. This is known as the cork, right? So this part is known as the cork. So this अब इस part से उन्होंने cells को निकाले. He prepared them and he viewed them under this primitive microscope. What did he observe? He saw honeycomb-like structures. So what are those honeycomb-like structures? Let me tell you. See, let's say this was a stain. Yes, color is visible. This was a stain. So we can say that this is the slide. And then honeycomb, meaning like this helical structures he found out over there. Like, you have seen a honeycomb, right? It has got like structures like this in a hexagon fashion. So in the same way, he observed the cells of the, basically these were dead cells. Okay? They were completely dead cells because the cork is basically accumulation of wood on the bark. It is also called the bark of the tree. So like it is basically accumulation of dead cells over a long period of time, which provides rigidity. You will learn about that in the second chapter, that is tissues. Now, cells are Latin for little rooms. Let me just erase them. Yeah, cells are Latin for little rooms. We say omni celluli cellulae. That means little rooms of cells. Little rooms called cells. So this was the basis of many experiments which led forward the discovery of more and more cells. For example, eukaryotic, prokaryotics, then various other types of cells also. Now, here one activity is stated. It is the activity of onion peel. It is the most widespread activity done in order to determine the, like, in order to show children how, sorry, just give me a second, in order to show how these cells work. So
is the most widespread. Now, what do we actually do in this activity? We take onion and we take out the outer covering of it. So you have an onion like this, and you take this covering out, like this part, and you take this part out, and it would be like this. For example, this is in a circular fashion. Yes, एक घुमा हुआ है. ठीक है? My drawing is very bad, so kindly समझ जाओ. तो या ऐसे घुमा हुआ है, मतलब वो ऐसे इस शेप में. ठीक है? छोटा सा है इस शेप में. अब इसके अंदर ये जो लाइनिंग रहती है, इसको निकाला गया. पतली सी लाइनिंग रहती है, उसका फिर इन लोग स्लाइड प्रिपेयर किए, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे. ठीक है? तो दे ऑब्जर्व this structure. So we see many nucleated cells within the specimen. Now, what are nucleated cells? Nucleated cells are basically those cells which have nucleus. Okay? So there are nucleated and non-nucleated. ठीक है? So इसका classification मैंने आगे बताया हुआ है. Now let us focus on what we saw on the specimen. So he again observed that there are cells present like this. Okay, tiny rooms are present where different metabolical activities are going on. Now, this part is called the nucleus. This fluid matrix is called the cytoplasm. Then, this part, this inner part is known as the vacuole. Then, these are the cell walls. Okay, these are the cell walls, and they are cumulatively onion cells. Correct? Now, moving forward, cell theory and contribution of scientists in the field of discovery of cells. Now, Leeuwenhoek. See, there are three scientists basically. There is Leeuwenhoek. There is Robert Brown. Robert Hooke. There is Perkinje. There is Skladden and Schwann. Then there is Virchow. These are the scientists which have contributed significantly to the discovery of cells. Okay? So these are the scientists. Now, ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1674 में. इन्होंने लाइव सेल्स को डिटरमाइन किया था. कैसे याद रखेंगे? L फॉर ल्यूवेनहॉक, L फॉर लाइव सेल्स. और कहां से लाइव सेल्स? पॉन्ड वाटर से. ठीक है? अब उस टाइम पे तो इतना 1674 में उतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था कि एक्चुअल ह्यूमन सेल्स को देख सकते हैं. उस टाइम पे सिंपल सा पॉन्ड वाटर लाए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए, तो उनको लिविंग सेल्स देखे उसके. ठीक है? नाउ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? अच्छा, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक में बहुत डिफिकल्टी आता है. तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने कॉक्स सेल्स को वो किया था. ठीक है? देखो, जिसका नाम एन से एंड हो रहा है उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने अपना नॉर्मल उसको डिस्कवर किया था. कॉक्स सेल वाला एक्सपेरिमेंट जो था. पर्किंजे ने फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया था. फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ठीक है? पर्किंजे ने 1839 में किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था. ठीक है? तो पर्किंजे, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म ओनली. ठीक है? व्हिच इज फ्लूइड मैट्रिक्स. नाउ पर्किंजे, पी लेटर से स्टार्ट होता है इनका नेम. तो P for Purkinje, P for protoplasm, ऐसे याद रख सकते हैं. स्क्लेडन एंड श्वान ने एंड वर्चाउ ने, तीनों ने काम किया था सेल थ्योरी के ऊपर. ठीक है? सो स्क्लेडन 1838 and Schwann 1839, they stated this is the most important.
ठीक है, यहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन के आता है, इधर से नहीं तो भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन के आएगा, तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुराना वाला भी है थोड़ा सा, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू दैट। वहां से सिर्फ ये आएगा रॉबर्ट हुक वाला 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछेगा, व्हाट इज सेल थ्योरी, मतलब स्टेट सेल थ्योरी व्हेन इट वाज फॉर्मुलेटेड, and who were the scientists contribution, what were the scientists contribution, and what did Virchow add to the law of cell theory. So what does the cell theory state? Cell theory basically states that all cells are basic units of life and all plants and animals. यहाँ पर थोड़ा सा correction है, cells are the basic units of life of all, यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब हर एक प्लांट एंड एनिमल इज मेड आउट ऑफ सेल। एनीथिंग दैट यू सी, एनीथिंग व्हिच इज लिविंग और व्हिच हैज डिसीज्ड फ्रॉम अ लिविंग बीइंग, मतलब कोई अगर लिविंग है, ठीक है, और कोई है जो मर गया है, ठीक है, लिविंग था पहले देन मर गया है, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, मर गया है बोलते हैं ना, दैट इज बेसिकली सेल्स टाइम, नथिंग एल्स। ठीक है, वर्चाउ लेटर एडेड दैट द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, ठीक है, देन it breaks down into 2 cells, then these break down into 1 2 3 or 4 5 cells, 5 6 cells, sorry 4 cells में टूटेगा, देन ये 4 8 में डिवाइड होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे 10th के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन। ठीक है, तो वर्षाव ने क्या बताया था यहाँ पे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स आज है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, जो है 1831 का, और ये एक सेल है जो है 100 एडी का। ठीक है, तो ये वाले सेल से इसका अराइज हुआ है, तभी जाके, मतलब वो 100 एडी वाला सेल था, तभी जाके ये 1831 वाला सेल अपने सामने आया। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ सेल, फिर से चले गया ये, what are the types of cells। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, मतलब कैसे बताऊं, लाइक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ दिस इज ऑर्गेनिज्म, सॉरी। ठीक है, तो an organism can be unicellular and an organism can be multicellular organisms, 2 dimensions are there। ठीक है, तो what is unicellular now? यूनिसेलुलर नेम से ही समझ में आता है। अरे यार क्या हो गया इसको, आज काम नहीं कर रहा ठीक से, कभी कभी बहुत अच्छे से चलता है, कभी कभी चलता ही नहीं। यूनिसेल्यूलर, ठीक है, इधर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, चलो। यूनि मीनिंग वन, सेल्यूलर मीनिंग सेल, तो those organisms which are made up of only one cell is called unicellular organisms। अच्छा, अब इनका क्या रहेगा, एक ही सेल है तो यही एक ही सेल ही सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। देखो मैंने लिखा भी है, unicellular organisms are made up of only one cell that carries out all the functions needed by an organism, while the multicellular organisms use many different cells to function। Unicellular organisms include bacteria, protists and yeast। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड यीस्ट के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए बस एग्जांपल के बारे में जानो। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कुछ रहा तो कांटेक्ट मी, आई विल टेल यू व्हाट द एक्चुअल थिंग इज, हाउ क्लासिफिकेशन इज डन। ये है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, नाउ यूनिसेलुलर समझ लिए, मतलब एक ही सेल है, यही एक ही सेल सब कुछ करेगा, यही एक ही सेल दाता भी करता है। ठीक है, नाउ अरे यार फिर से चले गया, नाउ
Multicellular organisms are basically those organisms which are composed of more than one cell, with groups of cell differentiating to take on specialized functions. इधर अपने को दिखता है division of labor. What is division of labor? Division of labor is basically division of work into many tasks, into many organelles, so that they perform more efficiently. Okay? So within a cell, there are multiple organelles. So if I draw a cell, there are multiple organelles. Let's say these are the many organelles. Although a cell does not look like this, a cell somewhat looks like this. Okay? A cell somewhat looks like this. So these are basically the organelles, or you can say the organs of the cell. So ये जो organs हैं, they perform different tasks. Okay, so they are known as multicellular organisms. Next, we have shape of cells. Now, what does the shape of cell determine? ठीक है, shape of cell तो बोलते हैं अलग अलग shape के cells रहते हैं. देखो जैसे ovum अलग है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल अलग है, स्पर्म अलग रहता है, बोन सेल पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, देन एरिथ्रोब्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट वगैरह सबके सेल्स के अलग अलग रहते हैं. ब्लड सेल्स अलग है, देखो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स अलग अलग रहते हैं. फैट का सेल देखो कितना मोटा है. तो these there are different shapes. Now shapes are related to the functions of the specific cells perform. ठीक है. Now for example, fat cell. Fat cell is basically, as you can see, is doing the work of storage. है ना, स्टोर करके रखा हुआ है, देखो पूरा इसके अंदर स्टोर है, पूरा फूड स्टोर है इसके अंदर. सो इट इज अ वैक्यूम. ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा सिंपलर टर्म में बताऊं तो इट इज अ वैक्यूम. ठीक है, क्योंकि वो स्टोरेज करके रखा है. ठीक है, तो it is storing, so it has a particular purpose. Now each cell has a peculiar shape. Every cell that you will see in your entire life will have some or the other peculiar function, peculiar shape. Sorry. According to their need, they are classified into various shapes and various sizes. Okay. For example, you can say sperm. Sperm is motile. Sperm is short. Okay. For example, if I draw it over here, sperm looks something like this. है ना? Sperm is motile. ठीक है. It has a flagella at the end, which it uses to move around. ये भी पढ़ना है टेंथ. ठीक है. So this is a sperm. Now अब ये छोटा है. ठीक है. मतलब ये तो पिकोमीटर से भी छोटा रहता है, बट इसको है इसका शेप, एक पर्टिकुलर शेप है जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर जाए थ्रू द यूटेरस एंड देन फर्टिलाइज द ओवम. नाउ so according to their need, they are classified in various shapes and sizes. Now, each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. Same चीज है, ठीक है. Division of labor is seen in many multicellular organisms. मैंने पीछे भी बताया. So, shape of cells have various, you can say, what you can call. It is a necessity basically. ठीक है. So it is kind of important. यहाँ से at least एक मार्क का क्वेश्चन आएगा कि बताओ कैसे शेप और साइज रिलेटेड. ठीक है. Now, structural organization of cells. अभी तक सेल बात कर रहे हैं. सेल के अंदर होता क्या है एक्चुअली, वो पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइट कलर देता हूँ. तो फर्स्ट इज प्लाज्मा और द सेल मेम्ब्रेन. hold on. हाँ. So it is the outermost covering of the cell. अगर मैं एक सेल बनाऊं यहाँ पे, जैसे ये एक सेल है. ठीक है, इसका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. तो this outermost covering is called plasma membrane. ठीक है, it's called the plasma membrane. Now it is semi-permeable. Now what is semi-permeability? This is semi-permeable, meaning that it is like if you see it latitudinally, मतलब ऐसे साइड से देखोगे, अभी तो ऐसे ऊपर से देख रहे हो, अभी ऐसे साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा ना इसका वॉल. तो this wall allows some substances to pass through it
एंड इट डज नॉट अलाउ सम, मतलब कुछ कुछ को अलाउ करेगा जाने के लिए, विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर नेसेसरी, और जो जो नेसेसरी नहीं है उनको पास करने नहीं देगा। ठीक है, तो इट इज नोन एज सेमी परमिएबिलिटी और सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। नाउ सब्सटेंस जो मूव करेंगे वो डिफ्यूजन से मूव करेंगे। डिफ्यूजन इज बेसिकली movement of substances from a level of higher concentration to a level of lower concentration। अब मेरे कहने का मतलब क्या है ये भी समझो। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी चीज का, अब देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री बताता हूँ। सोल्यूशन में दो पार्ट रहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूट ज्यादा रहा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सॉल्वेंट कम रहा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर सॉल्यूट कम रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा तो हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से अब कैसे मैं समझा, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हवा का एग्जांपल। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तुम एक रूम के अंदर बैठे हुए हो, वो रूम के अंदर ठंडी हवा बह रही है, घर के बाहर गर्म हवा। अब तुम जैसे ही रूम खोलोगे, क्योंकि अंदर वाला रूम ठंडा है बाहर गर्म हवा है, तो गर्म हवा रूम के अंदर जाएगी, ठंडी हवा बाहर जाएगी। ठीक है, तो हायर से लोअर, लोअर से हायर जा रहा है ना, सेम वे में ये भी चलता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द सेम, बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन मीडियम ऑफ फ्लूइड to a lower concentration medium of fluid, in this is known as diffusion। Now मैंने भी लिखा भी देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एंड गैसेस ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर वाटर है, ठीक है, अगर वाटर है तो वो करेगा ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस इज बेसिकली डिफ्यूजन, osmosis is basically diffusion without, sorry, diffusion is basically osmosis. It can be said osmosis. No, diffusion can't be said osmosis. Osmosis can be said diffusion, but with a semi-permeable membrane। ठीक है, जहां पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का को ऐड कर दोगे, वहां पर वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्मोसिस में। सो जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू अगर वाटर मूव कर रहा है तो इट वुड बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, it is flexible and has organic molecules called lipids and it regulates endocytosis। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लिपिड्स फैट्स वगैरह को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो। ठीक है, लिपिड्स आर बेसिकली द बेसिस्ट पार्ट ऑफ योर फैट्स। ठीक है, तो लिपिड्स आते हैं, देन फैट्स, देन योर स्टोरेज। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? बेसिकली अब सेल है तो सेल खाना भी लेगा। ठीक है, सेल खाना लेगा मतलब यहाँ पर जैसे खाना आ गया, ठीक है, फूड पार्टिकल आया, इसको ये एनगल्फ करेगा। ठीक है, एनगल्फ करके अपने अंदर ले लेगा, देन साइटोप्लाज्म उसको ब्रेक डाउन कर देगा, देन वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। सो दिस एनगल्फमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, hypotonic solution is where pressure out is higher and cellular pressure is lower। हाइपोटोनिक कैसे कर सकते हो तुम, कि तुम अपने आप को इमेजिन करो। ठीक है, तुम्हारे साथ में कोई आदमी है जो कि तुम्हारे ऊपर बहुत चिल्ला रहा है, तुम एकदम शांत हो, वो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है। ठीक है, तो उसका प्रेशर ज्यादा है, तुम्हारा प्रेशर कम है। वो जो भी चिल्लाएगा तुम सुनते जाओगे, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हाइपोटोनिक हो गए, मतलब तुम्हारे अंदर कोई प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई चिल्ला रहा है, तुम प्रेशर को ले रहे हो। हाइपरटोनिक, तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, किसी और का प्रेशर कम है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। हाइपर मतलब गुस्सा बहुत है तुम्हारे अंदर, तुम उसको बाहर छोड़ोगे। देन आइसोटोनिक में प्रेशर जो रहता है दोनों साइड में सेम रहता है। ठीक है, तो इस केस में हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक हो जाएगा, और इसमें नो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, cell wall and nucleus। Now, let me draw a diagram to make you understand better. Just hold on.
Okay, let's say this is a cell. थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ. ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सेल. ये सेल में जो भी मैंने बनाया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था. ठीक है, ऐसा कुछ सेल दिखता है. दिस इज अ प्लांट सेल. ठीक है, दिस इज हाउ अ सेल लुक्स लाइक. तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो ये वाला पार्ट है ये है सेल वॉल. ठीक है, द अदर पार्ट इज सेल वॉल. नाउ सेल वॉल इज मेड आउट ऑफ सेल्यूलोज. देखो इधर लिखा हुआ है. ठीक है, इज मेड आउट ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, जो कि मोस्ट प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है. नाउ it is a rigid outer covering like plasma membrane. Plasma membrane बाहर का कवरिंग था बट वो फ्लेक्सिबल था. This is not flexible. This is very rigid. मतलब अगर सेल का स्ट्रक्चर ऐसे है तो वो सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा. अंदर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ भी हो जाए वो अपना शेप नहीं बदलेगा. ठीक है, it rigid outer covering lies outside the cell membrane. ठीक है, मैं बताया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बाहरी सेल वॉल है. ठीक है, it phenomenalizes plasmolysis, movement of cell away from cell wall. Now what does this mean? ये कॉन्सेप्ट मैं सच बताऊं ना मेरे को नाइन्थ में बहुत जरूर आया. ठीक है, तो you have this cell for example over here जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब क्या होगा अगर हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखे तो ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे. तो ये ऐसे ना श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, ऐसे कभी कभी श्रिंक हो जाता है. ठीक है, ऐसे करके. तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और कुछ नहीं. अलाउज सेल्स टू थ्राइव इन हाइपोटोनिज्म. अब हाइपोटोनिज्म में कैसे हेल्प करेगा क्योंकि बाहर का रिजिड है, अंदर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने नहीं देगा तो वैसे वो हो जाएगा. दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सेल वॉल. इससे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से 5 मार्क के आते हैं, 3 मार्क के आते हैं, 2 मार्क के भी आते हैं, 1 मार्क के भी आते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना. न्यूक्लियस में सब डिविजन भी हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन. Sorry, it has double layer membrane called nuclear membrane. Nucleus is basically the center of, you can say, your central part. Like you have your body, you have your brain. In the same way, it has nucleus. Okay? So nucleus has pores to allow transfer of substances. Nucleus has chromosomes. और Rothschild कैसे दिखते हैं chromosomes? ऐसे. ठीक है, ऐसे chromosomes. तो ये प्रेजेंट रहते हैं अपने इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस थोड़ा सा 10th का चैप्टर है, फिर भी बताता हूँ. तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा है. तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर जो ट्रेट्स है तुम्हारे मम्मी पापा से कैसे बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक डॉग. ठीक है, एक व्हाइट डॉग है, एक ब्लैक डॉग है. ठीक है, उनका जो बच्चा रहेगा और व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब वो दोनों पेरेंट्स से अपने ट्रेड्स को लाया है. दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, इसका नॉन फंक्शनल पार्ट इज क्रोमैटिन. ठीक है, फंक्शनल पार्ट इज डीएनए and chromosomes are made of DNA and proteins. Functional segments called gene. DNA का functional segment is called gene. Non-functional is called chromosome. ये भी मैं बताऊंगा. ठीक है, it plays a central role in reproduction and determines maturity and chemical activities. अब थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे लिखता है. ठीक है,
सी, ये अपना हो गया सेल, है ना। सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे ही रहता है। ये इसके आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसे रहता है कुछ। तो और थोड़ा सा वो करता हूँ, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और रुको, ठीक है। न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसे दिखता है कुछ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अ, अब देखो, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स बात है, ठीक है, क्योंकि इसको समझेंगे नहीं ना जब तक, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा अपने को न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूक्लियस। अब जैसे सेल्स रहते हैं ना, न्यूक्लियस अपने आप में एक अलग चीज है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेलीज रहते हैं, और हर एक के रहते हैं, न्यूक्लियस के थोड़ा सा इसमें एम्फेसिस। सी, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। क्यों नहीं कर रहा? न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, ठीक है। दिस इज क्रोमैटिन, ठीक है। This part is known as nucleolus, ठीक है, and this is nucleoplasm। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अभी देखो, डीएनए जो अपना रहता है ना, डीएनए कैसे दिखता है? इस तरीके का डीएनए रहता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है, मतलब ऐसे नहीं रहता है, इसके बीच में ऐसे लाइंस भी रहती है, बट नॉट ड्रॉइंग them, ठीक है। इसका जो एक ये फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, मतलब ये और ये, ठीक है, मतलब अरे यार, ये तो और कॉम्प्लेक्स बन गया थोड़ा सा तुमने के लिए। ये देखो, ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ऐसे कलर कोड करूँ क्या, अच्छे से समझ में आया? ये देखो, ये है ऐसे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अरे यार, गायब हो गया, कोई नहीं, फिर से बना, ठीक है। तो मैं बता रहा था, ये ये है अपना डीएनए था, ठीक है। अब इसका एक फंक्शनल पार्ट, मतलब ये, दिस इज नॉन एज जीन, ठीक है। तो दिस फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड जीन, ठीक है, एंड द नॉन फंक्शनल पार्ट इज ऑब्वियसली कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। तो अब मैंने बताया था, ये ऐसे एक न्यूक्लियस है, इसके बीच बीच में पोर्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमैटिन मटेरियल, देन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑल। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अभी के लिए बस जान लो, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। नाउ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, मैं ना एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि तुम लोग
को थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है। ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी एंड वेरियस थिंग्स हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में सेल्स को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इसको ना याद रखने का मेरे पास तो एक तरीका है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सामने का वर्ड देखता हूँ, प्रो लिखा हुआ है। प्रो मतलब अब कोई प्रो कैसे बनता है, तुम लोग बोलते हो ना गेम खेलते खेलते प्रो बन चुका है करके, मतलब बहुत टाइम से वो खेल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेम लॉजिक लगाओ यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है मतलब प्रो लिखा हुआ है मतलब बहुत टाइम से, ये तो प्रिमिटिव है। ठीक है, दे आर प्रिमिटिव। सिमिलरली यूकैरियोट बचे हुए वो न्यू। ठीक है, इनको तुम लोग की गेमिंग लैंग्वेज में ऐसे टर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दे लैक न्यूक्लियर लीजन, प्रोकैरियोट्स लैक न्यूक्लियर लीजन। मैं ना थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ऐसे कच पचा रहता है पूरा, और ये थोड़ा सा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है इसका। ठीक है, डायग्राम बनता है। पोरली डिफाइंड स्ट्रक्चर, पेन काम नहीं करता है। पोरली डिफाइंड स्ट्रक्चर देखो कितना गंदा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। इसका स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा बना है, दे हैव न्यूक्लियर रीजन, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। अच्छा, न्यूक्लियोइड क्या होता है ना, ये सेल है। ठीक है, न्यूक्लियोइड बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोइड अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, they lack cytoplasmic organs, they have cytoplasmic organs, membranous vesicles रहते हैं, इसके पास प्लास्टिड रहते हैं। they don't have membrane bound organelles, इधर प्रेजेंट रहते हैं। मेटाबॉलिज्म डन बाय पुअर ऑर्गेनेल्स, इधर मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड रहता है, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़े थे। अमीबा इसका एग्जांपल है, प्रोटोजोन्स इसका एग्जांपल है। दे आर स्मॉल साइज, दे आर बिगर इन साइज, इसमें सिंगल क्रोमोसोम रहता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ये था अपना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। नाउ थोड़ा सा किधर आ गया, ये ना सेल ऑर्गेनेल्स वाला पार्ट है। हाँ ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल बना लेते हैं। सेल बन गया, सेल का वॉल भी बना लो, सेल का वॉल। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस डाल दो, डाल दिए। न्यूक्लियस ना हमेशा कोशिश करना इस टाइप का बनाने का, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। नाउ साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स सपोर्टिंग द ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स है इसके पास, अब जैसे तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, उनको सपोर्ट करता है कोई ना कोई मसल्स वगैरह। सेम वे में इनको भी, इनके भी ऑर्गन्स को सपोर्ट चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी ना हवा में बहते रहे। तो इनके ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है अपना फ्लूइड मैट्रिक्स। इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट स्पेस, इट इज एंक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखो प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, ये देखो प्लाज्मा भैया, प्लाज्मा भैया प्रेजेंट है इधर। ठीक है, रीजन टेक वेरी लिटिल स्टेन, मतलब लिटिल स्टेन मतलब इनको जब स्टेन किया जाता है, जब इसके ऊपर पन्नी चढ़ाई जाती है, जब इसको क्या बोलते हैं, डाई डाल के अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, डाई नहीं रहता है, डाई बोल सकते हैं एक तरीके से, डाई रहता है। तो वो ऐसे रहा ना, ऐसे अगर स्पेसिमेन है तो ये पूरा ऐसे कलर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ब्लड डाले ना, तो ये जैसे ब्लड डाल दिए इसके ऊपर, तो ये ऐसे पूरा आ जाता है कलर इसके ऊपर। ठीक है, तो ये रेड एक्चुअल कलर रहता है। अब अगर जिससे हम लोग इसको ब्लू कलर में स्टेन किए तो ये ऐसे कलर का हो जाता है। फिर जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, सेल्स भी पूरे ब्लू ब्लू दिखते हैं। तो in the same way, they occupy the least amount of stain possible and fluid content inside the plasma membrane. It is the fluid content. मतलब बेसिकली सेल है, सेल के अंदर ये जो फ्लूइड फ्लूइड सब बह रखा है ना, यही है साइटोप्लाज्म। हाँ, ये क्या आ गया। अच्छा हाँ ठीक ठीक, सही कह रहा, ये थोड़ा सा पीछे हो गया पता नहीं क्यों।
चाहिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था क्या? ये ना सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा काट के cell organelles. Now, every cell has a membrane around it to keep its content away from the environment. Large and complex cells form multicellular structure and they use membrane-bound structures. Now, first is endoplasmic reticulum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? ऐसा एक सेल रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियस डाल दिए, ये ऐसे ऐसे बना दिए इसके अराउंड, और ये ऐसे. This is known as endoplasmic reticulum. Okay? It is known as the endoplasmic reticulum. Now, what is endoplasmic reticulum? It is a large network of membrane-bound tubes. They have oblong-shaped bags called vesicles and has endoplasmic reticular membrane. There are two types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic and rough endoplasmic. Smooth endoplasmic tube, they don't have ribosomes attached, तो जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो स्मूथ दिखते हैं. RER मतलब rough endoplasmic reticulum have ribosomes attached. ठीक है? SER helps in manufacturing of lipids, whereas ribosomes are site of protein manufacturing. ये इसका point है. ठीक है? RER का. Process of repairing membrane by them is called membrane biogenesis. अब देखो क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन मान लो यहाँ पर अटैक हुआ, ये मेम्ब्रेन टूट गया यहाँ से, ये मेम्ब्रेन को ये जाके रिपेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड, मतलब रिपेयर करने को अपन बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है? चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये जो निकले हुए ना तार जैसे, वही चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये है ऐसे कंडक्ट करवाता है इस फॉर्म में. ठीक है? Provide framework for biochemical activities to take place, and SER plays a huge role in detoxification. Detoxification मतलब poisonous substances को reduce करता है. Next, Golgi apparatus. Golgi apparatus is nothing but everything. I don't even know what I'm saying at this point right now. See, jokes apart, देखो, ये एक सेल है, मैं इसलिए जगह छोड़ा था साइड में ताकि मैं बना के दिखाऊं एट रियल टाइम. ऐसे मैं बनाऊंगा ना तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है? इधर पे अपना न्यूक्लियस के बाजू में एक ये ऐसे ऐसे करके बने रहता है. ठीक है? मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ये रहता है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बट इसको इजियर रेफरेंस के लिए ऐसे दिखाते हैं. ठीक है? This is Golgi apparatus. It is membrane bound vesicles. Vesicles बताया था, they are oblong shaped. Oblong shape मतलब this shape होती है. ठीक है? They are oblong shaped. They are parallel to each other. ठीक है? देखो ये वाला जो रहेगा इसके parallel to रहेगा, and they are called cisterns. ठीक है? They have connection to endoplasmic reticulum. इनसे यहाँ पर जो endoplasmic reticulum रहता है उनसे connection रहता है इनका. Material synthesized by endoplasmic reticulum is dispatched by Golgi apparatus. जो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है अपना एंडोप्लाज्म, अब जैसे मान लो ये सेल, ठीक है, ये यहाँ न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus. ठीक है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सिंथेसिस करेगा ये भेजेगा गोल्गी apparatus को, जो कि पूरा स्पेक्ट करेगा. Its functions include storage, modification and packaging. Involved in formation of lysosomes, and it was found by Camillo Golgi in 1843. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. पीछे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से करके जाना. ठीक है? एंड गोल्गी apparatus अच्छे से करके जाना. नाउ लाइसोसोम्स, अब ये थोड़े से छोटे छोटे पार्ट है. हाँ, इधर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले बता दूं. माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है,
सॉरी ये ना थोड़ा सा गलत हो गया, ये इधर आएगा वैक्यूल्स। ठीक है, ये वैक्यूल्स आएगा। तो वैक्यूल्स को पढ़ लेना और प्लास्टिड्स पढ़ लेना, लाइसोसोम्स उतना नहीं आता, लाइसोसोम्स को भी पढ़ लेना एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Now, cell organelles का ही पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो ये सैक है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, these are called lysosomes. ठीक है, they are the waste disposal system of cells. They help degrade worn out material and foreign substances. अब जैसे कोई एक, ठीक है, एक सेल है, उसमें कुछ टूट फूट गया, उसको जाके ये डिग्रेड करके नया बनाने का काम चालू करवा देगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मेरे हर एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ चुका है, ये लिख के आता है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है सबका ये। ठीक है, सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एक ना एक आएगा। ठीक है, सुसाइड बैग्स बोल देगा व्हाट इज सुसाइड बैग, एक्सप्लेन। ठीक है, हाउ कैन यू कॉइन द टर्म सुसाइड बैग्स, तो ये सब रहते हैं। ठीक है, they are called suicide bag as they digest their own cell during cellular metabolism, meaning that when a cell degrades, ठीक है, डिग्रेड होने के बाद ये खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सुसाइड बैग। ये फट जाएगा, पूरा सेल डिग्रेड हो जाएगा, बिकॉज़ इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। मीम मजाक मत बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया सही में पावर हाउस है सेल का। ठीक है, इट हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर इज डीपली फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं बना के दिखाता हूं उनको। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर एटीपी जनरेशन होता है। ठीक है, वापस जाते हैं। Outer membrane is porous and inner is deeply folded. Inner membrane has ATP producing factors. They have their own DNA. ये point बहुत important है। ठीक है, they have their own DNA and ribosomes and make their own protein. ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ही ऐसे हैं जिनके पास खुद का कैपेबिलिटी रहता है टू मेक देयर ओन डीएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ plastids, they are only present in plant cells. There are of two types, chromoplastids and chloroplastids. Chromoplastids are colorless, whereas chloroplastids are green due to chlorophyll. Chlorophyll पता ही है green color का रहता है, that is why उनका green color आ जाता है। ठीक है, leucoplasts are responsible for storage of starch, oil and protein granules. Plastids का internal organization is deeply folded called stroma. अब ये भी ऐसे ही दिखता है, सच बताऊं ना तो हर एक चीज एक दूसरे के जैसे ही दिखती है। ये है, this would be connected like this. इसी को ये अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। It is the same, nothing different. ठीक है, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो plastids, mitochondria and nucleus, यहाँ एक जगह लिख देता हूँ। Plastids, mitochondria and nucleus have their own DNA, ribo and proteins. ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट्स। दे आर स्मॉल इन एनिमल्स व्हेयरएज लार्ज इन प्लांट्स, एंड दे प्लांट्स के जो रहते हैं दे आर टर्जिड एंड दे प्रोवाइड रिच एनर्जी। ठीक है, नाउ सेलुलर डिवीजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रूट्स हैं अपने 10th के रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में काम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सी माइटोसिस अपना होता है सोमैटिक सेल्स में, where one parent cell produces two daughter cells and they are usually required for growth. अब यहाँ क्या होगा, somatic cells basically are autosomes
ऑटोजोम्स मतलब नॉन गैमेटिक सेल्स, नॉन गैमेटिक सेल्स मीनिंग कि जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करते, नॉन रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब सोमैटिक सेल्स है अपने पास। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है एंड दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए करते हैं। होता क्या है इसमें, एक ये है, ठीक है, so this is this, it breaks down into two of them। ठीक है, तो मान लो एक ऐसे बन गया, कैसे बन गया, यहाँ पर ये छोटा हो गया, यहाँ पर ये बड़ा हो गया, ऐसे बनता है। ठीक है, बट वेयर एज इन मियोसिस इट ऑकर्स इन गैमेटिक सेल्स, मतलब रिप्रोडक्शन में अपना क्या काम आता है, मियोसिस। याद कर लो, हमको 10th में जाते साथ पूछेंगे कि गैमेटिक सेल्स में क्या होता है, तो बताना उठ के कि हाँ इन्होंने बताया था मियोसिस में गैमेटिक सेल में होता है करके। तो one parent divides to form two daughters, which later divides to form four daughters. Here the number of chromosomes are halved and process occurs when they form gametes after fertilization। ठीक है, fertilization क्या होता है, fertilization when sperm goes and fertilizes ova to produce an embryo और zygote। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। हैप्लॉइड आर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड आर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हैप्लॉइड में हाफ हो जाता है, तो जैसे 48 है तो 24 हो जाएगा, बिकॉज जब दो गैमेटिक सेल्स मिलके एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे, तो अब देखो नॉर्मल ह्यूमन के में होते हैं 48, ये थोड़ा सा सीनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। 48 रहते हैं, जिसमें से 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस, सॉरी 46 हो गया, नहीं 46, 46 प्लस XX और 46 प्लस, नहीं ठीक है, ये ना एक पेयर्स में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, 46 टोटल रहते हैं। ठीक है, तो 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, मतलब पेयर्स में 22 पेयर्स प्लस XX एंड 22 पेयर्स प्लस XY। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो अब ये हाफ हाफ जब मिलेंगे तो ये 46 बनाएंगे, दैट इज वाई ऐसे रहता है। अभी आगे क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा ठीक से बताएंगे। सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोग ने पूरा सेल का बारे में पढ़ा, कौन डिस्कवर किया था। ठीक है, हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा सेल का फंक्शन, हमने देखे सेल के डायग्राम्स एंड हमने पढ़ा डिवीजन के बारे में। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने डील किए आज। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे को टेक्स्ट या फिर कॉल कर लेना। ठीक है, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन आई विल बी बैक with a new video on yet another interesting topic. तब तक के लिए be safe and happy learning to one and all.